Good evening, sir. Yeah, good evening, all of you. Just give me a minute so that I can share my screen. Okay. So in last lecture, we have covered like lot of things. Like we started from the section tag, header tag, navigation tag, then order list, on order list. Then we'll see like how we can embed any particular audio and video in our web page. Then article tag and footer tag. Okay. So on today's lecture guys, we are going to see how we can create a Google form. For example, you are able to see there are a lot of Google forms there, right, in any particular web page. So like on today's lecture we are able to see like how we can create any particular Google form, and like we'll try to design very good Google form for like computer science student. And like we are going to like start a CSS cost cutting style sheet from today onward. Okay. Either like we'll design this like, and after that like we'll see the doubts and all. Okay. So I hope I all of you like you are able to see, you are able to hear me properly. Okay. And my screen is visible to you, right? Okay. So like when I'm talking about like form guys, a Google form or any particular form if you wanted to add in your web page, so there is some of the tag. For example, form tag is there. Okay. So what we are doing actually, we are using that particular form tag to, and like there are multiple of labels, checkbox. Like just give me a moment so that I can give you details. Yeah. So when I talking about like this form tag, like before going to the form tag, you are able to see there are a lot of tag is there, like anchor tag, ABBR tag, then B tag, then BR tag, then button. So like of course like we are going to use these tags to create like our Google form. We are going to use button tag, span tag, input tag, then select tag, the text area, right? So these are the tag which we are going to use to create Google form. Okay. So let us start. Okay, so first we need to start from doctime HTML. So in Visual Studio Code guys, we have a like we can write like that HTML, and we can write colon then 5, and we can, when we are pressing enter, so by default is like what Visual Studio Code actually does, it will generate boilerplate code, and we can use that particular code for development. Either what you can do, either you can use exclamation mark. Okay. And when you press enter button, so it will by default it will generate like or like normal code. Okay. And if it is generated, then you're able to say like it's doc type HTML, then HTML tag is there. Okay. Then languages in English it's mentioned. Okay. Then we have a head tag. Inside a head tag, this is some metadata. Okay. If you wanted to like use it like so it is fine, otherwise you can remove it as well. I know. So I'm going to remove this. Okay, fine. So this is the normal tag. So I'm just going to design a form. So I'm just removing your document, I'm writing your Google form.
Okay, now inside a body tag, we need to create like see like in the initial page I need to showcase some of the things on our web page. For example, this is our font tag and all. So for this region I'm going to use that particular h1 tag for heading purpose. Okay, and like in after like upcoming lecture we are going to use css as well. So for that particular region I need to write a div tag and container and all the things. So yesterday like we go through the div tag already. Okay, so I'm going to use div tag only. Take care. So first, like when I'm using div tag guys, so for example we can use like that. Okay, and inside a div tag, for example I wanted to write student registration form. Okay, so we can write like that, student registration form. Okay, uh, then save it and go here. You are able to see student registration form is okay. So we need to remove this a. Okay, fine. So like heading is completed. Now we need to write uh, some of the like entire one line sentence. Okay, like please fill the details like that. Please fill out this form carefully. Okay, so this is completed. Now guys, we are going to use form tag to create form. Okay, so how we can create it. So first, like when I talking about form tag, so we can write like that form and press enter button. Okay, so like when I'm pressing enter button, so you're able to see guys what it's created. First it will create it form, then xn, and after that form closing tag. Okay, so just remove it, this xn bar, press enter button, and like this is very little lengthy form. So what, like let's try to understand what we are going to insert in form. Okay, so first we will ask to the user what is your name. Okay, then name, either you can write full name. Okay, and after that we can ask to the like student what is your enrollment number. Enrollment number. Okay, then next like we need to ask to the student ki, like what is your email address. और फॉर्म में क्या हो सकता है, like mobile number. Then after mobile number, we need to ask to the user like what is your date of birth. Okay. Then we can ask to gender. Then we can ask to the student what is your department name. We can add some of the department like computer science, artificial intelligence, like that. And we'll ask to we'll add a like drop down menu over there. Okay, and we can ask to the like student what is your department, and department student need to select that particular department. Okay, then we can ask to the student what is your semester, current semester, or semester only, current semester. Then like we can ask to the student what are the skills you know, or tell it like languages which we can ask to the student which language you are comfortable, like C language, C++, Java, JavaScript, like that. Okay, so so we can write here skills. Okay, and in last there is a like we'll put the like comment box, so that any particular student wanted to ask any particular questions from that particular Google form. Okay, so what we can do, we can add a comment over there. Fine, so we can ask to the comment. Oh, take care.
So these are the things which we need to ask to the student when we are creating Google form. So these are the like details we need to enter, like when we creating any particular Google form. So first we need to understand what are the details we need to ask to the user. Okay, and based on those details we are going to create a Google form. So already we have decided, okay, these are the details we need to ask from the user. Okay, so one by one we are going to insert like these are the details like in our like we are going to use label, then input text area. These are the things which we are going to use. Then for gender, like we can use a radio button with there. Okay, and for department, when I talking about department on that particular time, we can use option over there, so that like we can ask to the student to please select that particular option. Okay, similarly for semester or current semester name, so like we can put over there 1 2 3 4 in option wise. So a student generally like can select that particular uh, semester, like ongoing semester. Then skills, like here like we can create a checkbox. And there, for example, like when I'm adding any particular language like C++, JavaScript or Python, so might be there are some of the student who know like multiple of languages, right? So for this region we need to select, we need to write over here in checkbox option. Okay, and in last we are we can create or comment and skills, like we are going to just insert like label, so that uh, anyone user can input any particular thing over there. Okay, so first like thing which we need to insert in our form, which is name. Okay, so what I'm going to do is inside a Google form, inside a form tag. Okay, I'm going to use a label. Okay, inside a label, oh sorry, just press into label, remove it. Okay, here we can write, we can ask to the user key what is your name or full name. So with the help of full name we can just save it, go here. Okay, full name it's visual, fine. Okay, okay, so now guys, like here, like in when I talking about like in HTML, so HTML actually provide the input box. With the help of input box, what we can do, we can like when we are writing that particular input box, so it will create an input box on our front end side. So a student or any of the user can input any particular text on that particular input form. So how we can how we can use it, we can just use input, and after that we can write here text like that, right? So for example, why how I am using this like option. So generally like in Visual Studio Code, like it's very good feature it's provided, so I'm using that particular feature. Just input then text, press enter button, it will auto complete like entire code. Okay, here name is equal to, I need to write over there full name. Okay, and id it's not mandatory, so just remove id. Okay, and like it's required, for example if you are asking to any particular user, okay, what is your name, so it is mandatory details, right? For this region we need to write over there required. Okay, just save it and go over there, and you are able to see here full name option is there, right? So I can write our name, my name, like that, full name. Okay, so थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ. Okay, so I can write my name here. Okay, one more thing, like when we are written this entire full name, so we need to move like lower side in next line. Okay, for this region we need to use here br tag. Okay, br tag जैसे यूज करेंगे, so we are able to move little bit next. Okay, अगर मैं बी आर टैग ऐसे फॉर एग्जांपल नहीं यूज़ करता हूँ, है ना, तो जैसे कोई भी फॉर्म कुछ भी लिखना चाहूँ तो इसके आगे ही चीज़ें आ जाएंगी, है ना, जैसे लिखता हूँ जैसे देखो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आई नीड टू इंसर्ट एनरोलमेंट नंबर. सो फॉर एनरोलमेंट नंबर आई नीड टू क्रिएट अ लेबल फॉर दिस.
And in label I need to write here enrollment number. Take it. And in enrollment number I need to write input text is enter button and type text, and name should be here enrollment. ठीक है. And ID को मैं remove कर देता हूँ because ID is not required, and here we need to write required. ठीक है. Let's save it and go here, and you are able to see after full name it's showing enrollment number, right? अगर मुझे इस enrollment number को मुझे नीचे लाना है, full name के नीचे लाना है, so what I can do, I can use here br tag. ठीक है. Let's just save it and see full name के नीचे enrollment number आ गया. Okay. अभी लाइक इट्स लुक नॉट टू मच गुड, बट या जैसे हम लोग CSS यूज करेंगे इट विल बिकम वेरी गुड फॉर्म. जैसे एक्चुअली गूगल फॉर्म बन के आता है वैसा फॉर्म बन जाएगा आफ्टर यूजिंग CSS हियर. ठीक है. तो हमने लाइक व्हाट वी आर डन टिल इट, वी आर क्रिएटिंग अ फॉर्म टैग. इनसाइड अ फॉर्म टैग वी आर क्रिएटिंग अ लेवल में हमने फुल नेम रखा. देन आफ्टर दैट वील created a input area for full name section. Okay. And after that again we are creating a label for enrollment number, and उसके अंदर हमने text को insert करने के लिए we put it over here enrollment number. Okay. Now next thing, like we need to insert email addresses. Okay. So email addresses के लिए again I'm using a br tag. सर Yeah. Yeah. सर जैसे रोल नंबर है तो न्यूमेरिक डिजिट्स के लिए भी टेक्स्ट यूज होगा टाइप में. Uh, हाँ मोस्टली हम लोग एनरोलमेंट नंबर लाइक सी लाइक व्हेन आई टॉकिंग अबाउट एनरोलमेंट नंबर ना, तो बहुत लोगों का एनरोलमेंट नंबर क्या होता है कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम W11 लाइक दैट. ओके. सो उसमें क्या होता है कि सर इंग्लिश फॉर के एग्जांपल अगर रोल नंबर हुआ तो जैसे डिजिट्स में हुआ तो टाइप टेक्स्ट ही रहेगा. फॉर एग्जांपल व्हेन आई टॉकिंग अबाउट लाइक मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर के लिए तो हम लोग लाइक टेल यूज करते हैं टेलीफोन के लिए TEL. बट टेक्स टेक्स ही हम लोग यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी वांटेड टू इंसर्ट एनी पर्टिकुलर नंबर, क्योंकि इसके लिए कुछ अलग अभी तक तो मैंने यूज नहीं किया है ना. सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गोइंग टू यूज टेक्स ओनली. ठीक है. ओके सर. ठीक है. सो एनरोलमेंट नंबर के लिए आई एम यूजिंग हियर टैग्स, देन आई पुट इट ओवर देयर एनरोलमेंट. है ना. नेक्स्ट क्या था हमारा ईमेल एड्रेस. सो ईमेल एड्रेस के लिए लाइक देयर टाइप विल बी ईमेल ओनली. ओके. सो मैं यहाँ पे लेवल यूज करता हूँ, एंड लेवल के अंदर आई जस्ट रिमूव दिस ऑल द थिंग्स, एंड इनसाइड इट आई वांटेड टू इंसर्ट ईमेल एड्रेसेस. मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल एड्रेस. ठीक है. अब ईमेल एड्रेस का लेबल हमने बना लिया, एंड हियर यू नीड टू क्रिएट अ इनपुट फॉर ईमेल. ओके. सो वी कैन राइट हियर ईमेल, प्रेस एंटर बटन. ठीक है. तो इनपुट यहाँ पे टाइप इक्वल टू ईमेल हो गया. फॉर एग्जांपल इनपुट यहाँ पे नंबर करता हूँ, नंबर आ रहा है. ठीक है. नंबर आ रहा है, दैट्स मीन वी कैन यूज नंबर. ओके. अगर कोई भी ऐसा नंबर है फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, उसमें कोई इंग्लिश के लेटर्स नहीं आ रहा है, दैट्स मीन वी कैन यूज नंबर. ओके. नंबर तो लिखने पे आ रहा है, BS को इज ऑलरेडी सजेस्टिंग दैट पर्टिकुलर नंबर. ओके. ठीक है. सो हियर आई एम गोइंग टू यूज ईमेल, एंड यहाँ पे नेम में मैं लिख सकता हूँ ईमेल. यस सर. सर टाइप में भी नंबर आ रहा है एक हाँ, ऑप्शन. तो नंबर यूज कर सकते हैं, है ना. यस सर. एंड आई एम गोइंग टू रिमूव दिस ID. ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. ठीक है. तो हमने फुल नेम इंसर्ट कर लिया, एनरोलमेंट नंबर हो गया, ईमेल एड्रेसेस हो गया. ईमेल एड्रेस यहाँ पे जैसे हम जाएंगे यहाँ पे देखेंगे. अच्छा. जैसे मान लो कि ईमेल एड्रेस में मैं यहाँ पे लिखता हूँ abc@gmail.com. ठीक है. जैसे मान लो कि abc@gmail.com. abc. और जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो ये
अभी वैलिडेशन हम लोग नहीं देख पा रहे हैं. सो इट इज़ मैंडेटरी व्हेन आई टॉकिंग अबाउट टाइप इक्वल टू ईमेल. सो इट इज़ मैंडेटरी टू राइट एट द रेट कॉलन. उसके बगैर वैलिडेट नहीं करेगा. इट्स सेइंग लाइक इट्स रॉन्ग ईमेल आईडी, है ना. ठीक है, ईमेल हमारा हो गया. ईमेल के बाद वी नीड टू इंसर्ट मोबाइल नंबर. ठीक है, तो मोबाइल नंबर के लिए फर्स्ट वी नीड टू राइट हियर, वी मूव टू द नेक्स्ट. एंड मोबाइल नंबर के लिए लाइक वी आर गोइंग टू यूज लेबल. ठीक है, so in label what we can do is uh, now I need to write mobile number. ठीक है, इनपुट. ठीक है, तो कभी भी जब मोबाइल नंबर हमें लिखना होता है तो मोस्टली हम लोग टेलीकॉम टाइप में यूज़ करते हैं, है ना. सो दैट शॉर्ट फॉर्म इज टेल, है ना. सो वी आर गोइंग टू यूज़ टेल. एंड यहाँ पे मैं नेम में मैं लिखूँगा मोबाइल नंबर, मोबाइल. ठीक है, एंड आई डी को ऊपर दूँगा. आई डी अभी के लिए ज़रूरत नहीं है. ठीक है, then save it and go that particular page. यहाँ पे मोबाइल नंबर इंसर्ट कर सकते हो. ठीक है, ठीक है. अब ये बहुत चिपक के आ रहा है बट ये सही हो जाएगा. आने वाले टाइम में हम इसे फिक्स कर लेंगे. अच्छा, वन मोर थिंग गाइस, हियर लाइक यू आर एबल टू सी आफ्टर फुल नेम. अगर इफ़ यू वांटेड टू राइट योर कॉलन लाइक दैट, जैसे ताकि और थोड़ा अच्छा लगे, है ना, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो ऐसे कॉलन. और यहाँ पे रोल नंबर में कॉलम लगा सकते हैं ऐसे, है ना. तो थोड़ा सा रीडेबिलिटी के लिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा बट या ऐसे भी इट्स गुड. ठीक है, सो आफ्टर मोबाइल नंबर वी नीड टू इंसर्ट डेट ऑफ बर्थ. ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट अ लेबल. ठीक है, लेबल के अंदर हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ. ठीक है, and inside it in the input type, so just press input. Then here for date of birth we are going to use date. Okay, and name के अंदर मैं लिख देता हूँ DOP शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद यहाँ पे अगर जाऊँगा तो डेट मंथ एंड ईयर करके आ रहा है, राइट. इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकता हूँ. ठीक है, सो इट इज़ प्रोवाइड बाई द स्टेमन, है ना. तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकता हूँ. ठीक है, ऐसे. ठीक है, तो ये हो गया डेट ऑफ बर्थ के लिए. नाउ यूजिंग बी आर टैग. इसके नीचे है हमारा जेंडर के लिए. तो हमें जेंडर के लिए मोस्टली हमें सी लाइक वी नीड टू क्रिएट अ रेडियो बटन फॉर दैट, है ना. तो हम यहाँ पे इनपुट जो टाइप होगा रेडियो यूज़ करेंगे. ओके, एंड बेसिकली लाइक व्हेन वी आर यूजिंग रेडियो बटन, तो हमें जो नेम है वहाँ पे तो जेंडर होगा, उसके साथ में हमें वैल्यू भी देना पड़ेगा, है ना. सो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन डू दिस, है ना. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आस्क पूछता हूँ यूज़र से. फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू प्रिंट, तो लेबल एक दूँगा. लेबल के अंदर मैं दूँगा यहाँ पे जेंडर. एंड इनसाइड जेंडर let's basically I wanted to insert like multiple of radio box. so उसके अंदर हम जो कि एक डिप टैग बना लेते हैं. डिप टैग के अंदर इनपुट टाइप लिख लेते हैं. इनपुट इट शुड बी रेडियो. ओके, सो इनपुट टाइप रेडियो. नेम यहाँ पे मुझे जेंडर लिखना पड़ेगा, जेंडर. एंड इसका जो वैल्यू होगा you can assign over the value like that. Value should be in the initial page, just write with your mail and यहाँ पे भी ऊपर लिख देते हैं लोग इसके ऊपर मेल, ताकि हम लोगों को दिखे. ठीक है, मैं सेम चीज़ कॉपी करूँगा. कॉपी करने के बाद कैन पुट इट हियर, कैन पेस्ट इट हियर. यहाँ पे मेल की जगह बस फीमेल कर लेंगे. ठीक है, let's save it and
गो हियर। तो जैसे मान लो कि जेंडर पे यहाँ पे मेल और फीमेल का ऑप्शन आ रहा है, सो वी कैन सेलेक्ट एनी ऑफ वन, है ना, ऐसे मुझे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, सो अगर मैं फीमेल पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इट विल डी सेलेक्ट टू मेल। अच्छा, यहाँ पे purple कर देते हैं। ठीक है, apart from this, like there is other we can put the like for one more option for other sides too, है ना, यहाँ पे मैं ठीक, either like you can go for only male female only, है ना, so that is also good, है ना। ये मैं कमेंट कर देता हूँ because most of the time we are using only two, but yeah in some of the Google form we are using like we can add others option as well। okay, ठीक है, तो हमने लेवल फॉर्म भी बना लिया, है ना। नाउ here we सर need हमने इसमें div tag क्यों यूज किया? basically see like there are multiple of like input box, right, है ना। सो कभी भी जब मल्टीपल लाइन्स हमें लिखना होता है, फिर मल्टीपल ऑफ इनपुट बॉक्स या फिर मल्टीपल ऑफ चीज़ें यूज करनी होती है, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम वी आर यूजिंग इनसाइड दैट पर्टिकुलर वन कंटेनर, है ना। तो कंटेनर के अंदर हमें लिखना चाहते हैं, सो ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम वी कैन यूज div tag, and either you can use spam tag as well, that is also fine। so there are a lot of tag which we can use। okay, सो ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि मल्टीपल ऑफ टाइम हमें कुछ करना हो, है ना, मतलब मल्टीपल ऑफ चीज़ें लिखनी हो इनसाइड वन सिंगल प्लेस, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम वी कैन यूज दिस div tag, है ना। ऐसे फॉर एग्जांपल हम इसके पहले हम लोग जो भी लिख रहे थे लेवल और उसके बाद, तो दिस इज़ वी आर रिटन सिंगल लाइन, है ना। तो सिंगल लाइन के लिए हमें कोई ज़रूरत होता नहीं है कि एक उसके अंदर लिखें, है ना। सो यहाँ पे हम लोग div tag लिख रहे हैं, ठीक है। विदाउट div tag भी हो सकता है, इट्स नॉट मैंडेटरी टू राइट div tag, बट या कोडिंग कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक वी नीड टू हैंडल दिस टाइप ऑफ सिनेरियो। अच्छा, वन मोर टाइम कि अगर मान लो कि इन फ्यूचर आई वांटेड टू चेंज द लाइक कलर्स ऑफ दिस कलर और एनी पर्टिकुलर थिंग, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे आईडी भी बना सकते हैं, डिप के अंदर आईडी बना सकते हैं या फिर क्लास बना सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर आईडी और क्लास नेम वी कैन चेंज द कलर और चेंज द लाइक फॉन्ट एज वेल, है ना। तो ये भी लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। सर फिर हमें पर्टिकुलर में आज जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा ना, सॉरी, अगर div यूज किया है। सर डिप, अगर div यूज किया है तो हमें पर्टिकुलर लाइंस में जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा ना। या हमें कोई जैसे मान लो कि डिप यूज़ किया तो डिप के अंदर ही चेंज कर लेंगे, यहाँ पे जो भी चेंज करना हो यहाँ पे क्लास या फिर आईडी बना लेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ क्लास सेलेक्टर आइदर आईडी सेलेक्टर वी कैन सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर इंटायर थिंग, है ना, और उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। हमें वन बाय वन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जिंदो हो गया। अच्छा, नाउ वी नीड टू राइट योर डिपार्टमेंट। ओके, सो यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट में हमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन लगाना है। सो ड्रॉप डाउन में बेसिकली लाइक ऑप्शंस होते हैं। सो लाइक इन एच टी एम एल एक्चुअली प्रोवाइड ऑप्शन, सो विच वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, है ना। तो लिखते हैं, जैसे मान लो कि लेवल में लिखता हूँ, है ना। लेवल के अंदर मुझे लिखना है यहाँ पे और डिपार्टमेंट। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डिपार्टमेंट नेम आइदर डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड इनसाइड दैट पर्टिकुलर लेवल inside that particular level, they basically we need to select any particular, for example there are a lot of department like computer science, AIML, data science, information science, information communication technology or department, there are a lot of departments. So that particular region we need to use over there one tag, that name is select tag, okay। and select tag में like mostly uh, like first we need to write your name, okay। so name में हम लोग डिपार्टमेंट ही लिख लेते हैं, है ना। एंड कभी भी लाइक व्हेन वी आर राइटिंग एनी पर्टिकुलर थिंग, सो जस्ट ट्राई टू राइट इन स्मॉलर लेटर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ भी टैक्स, ईमेल, टेल, डेट, रेडियो और डिपार्टमेंट, सो दैट विल वेरी ईजियर फॉर अस
है ना, when we are selecting that selecting this like entire like line, and if I wanted to change any particular color, कुछ कलर चेंज करना और फॉन्ट इंक्रीज करना और फॉन्ट को डिक्रीज करना हो, एंड वी आर डीलिंग विथ CSS, तो वो हमारे लिए इजी रहता है. ओके, so in this time guys, what we can do, just press enter, and inside the select box we can create the options. ठीक है, so options में like first for example we can add here select semester. Select semester, ठीक है. ऐसा क्या होगा कि दैट विल विजिबल टू द यूजर कि हमें क्या सेलेक्ट करना है ना. एंड आफ्टर दैट वी कैन पुट सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 लाइक दैट. जो भी सेमेस्टर है आपका, वी कैन पुट दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, इनसाइड. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेमेस्टर 1. Semester 1, just I'm going to copy the same thing. Okay. Six, 7, 8. Just save it and put that particular semester. तो जैसे मान लो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट का ऑप्शन आ रहा है, डिपार्टमेंट में सेलेक्ट सेमेस्टर में वी कैन सेलेक्ट लाइक सेमेस्टर लाइक दैट, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 लाइक दैट. ओके, तो ऐसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा डिपार्टमेंट का. आफ्टर डिपार्टमेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड sorry, just before the semester, semester. ठीक है, तो ये हमारा सेमेस्टर का हो गया. सेलेक्ट सेमेस्टर. ठीक है, अभी डिपार्टमेंट का अलग से बनाना पड़ेगा. तो सेम टू सेम जैसे अभी हमने सेमेस्टर को बनाया वैसे ही डिपार्टमेंट का भी बना सकते हैं, है ना. सो वी कैन क्रिएट अ लेबल लाइक दैट. अच्छा मैं पहले, अच्छा ठीक है, वी कैन क्रिएट लेबल एंड इनसाइड दैट पर्टिकुलर लेबल वी कैन क्रिएट फॉर डिपार्टमेंट. ठीक है, डिपार्टमेंट, and inside that particular department we can write here select. ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिपार्टमेंट ओनली, डिपार्टमेंट. IT को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, IT की ज़रूरत नहीं कोई. ठीक है, मैं यहाँ पे प्रेस एंटर करूँगा. फॉर एग्जांपल लाइक ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटीज, ईच एंड एवरी कॉलेज, देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर कंप्यूटर साइंस और लाइक इंजीनियरिंग ब्रांच. ओके, तो जितने भी इंजीनियरिंग ब्रांच हैं, जितने भी डिपार्टमेंट के नेम हैं, वी कैन एड दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नेम. ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन में आता हूँ तो ऑप्शन में लाइक फर्स्ट वी नीड टू राइट सेलेक्ट डिपार्टमेंट. जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट सेमेस्टर में किया था वैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा सेलेक्ट डिपार्टमेंट. तो यहाँ पे जैसे सेव करूँगा तो यहाँ पे मैं PR टैग यूज़ कर लेता हूँ ताकि नीचे चले. और अंदाजा लगा सकते हैं कि ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वी आर गोइंग टू यूज ऑप्शंस. ओके, inside the option we can write here for example
CSC डिपार्टमेंट, कोर CSC डिपार्टमेंट, ओके, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जस्ट मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। और वी कैन जस्ट इनपुट इंटरलोकिंग्स, और यहाँ पे CSC के अलावा अभी CSC AI एंड ML, CSC AI एंड ES, है ना। और क्या हो सकता है, CSC साइबर सिक्योरिटी, CSC साइबर सिक्योरिटी, देन CSC ब्लॉकचेन, हाँ ब्लॉकचेन, ठीक है। सो देयर आर सम स्पेशल, दिस इज द कोर, दिस इज द सम ऑफ द स्पेशलाइजेशन, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सेमेस्टर हो गया, एंड दिस इज द डिपार्टमेंट। यहाँ पे हम CSC भी सेलेक्ट कर सकते हैं, CSC AI ML, CSC AI DS, CSC cyber security, CSC blockchain, okay. So this, when I talking about these type of branches, so basically previously uh, like most of the students choose the CSC department only in the college, but now onward like specialization, most of the student going for specialization AI ML, either AIDS side, and some of the student who is uh, like more focus on the ethical hacking or cyber security role, they are going for cyber security or blockchain domain, okay. ठीक है। सो नाउ लाइक वी आर complete guys, like department, current semester, so these are the things is completed. So we are added here a lot of things like name, roll number, gender, male, female, then department and semester. ठीक है। After this, like we need to add skill section, okay. So in skill section, basically see like we have a multiple of skills, like for example when I talking about CSC student, so they know different tech stack like C++, HTML, Java, like that, and so might be there are any particular student is there who know multiple of tech stacks, तो उसके लिए हमें चेक बॉक्स बनाने पड़ेंगे, लाइक दीज आर द रेडियो बटन। व्हेन आई टॉकिंग अबाउट जेंडर, लाइक दिस रेडियो बटन, तो रेडियो बटन में क्या होता है कि हम किसी एक चीज़ को सेलेक्ट, जैसे दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, आइदर मेल आइदर फीमेल, राइट। बट व्हेन आई टॉकिंग अबाउट चेक बॉक्स, सो वी कैन चेक मल्टीपल ऑफ, वी कैन सेलेक्ट मल्टीपल ऑफ ऑप्शंस, राइट। सो जितने ऑप्शन है सारे को सेलेक्ट कर सकते हैं, आइदर आउट ऑफ 5 ऑप्शन वी कैन सेलेक्ट 5, आइदर 2, आइदर 3, आइदर 1, सो दैट इज़ नोन एज चेक बॉक्स, है ना। सो HTML के अंदर चेक बॉक्स का कॉन्सेप्ट आता है। सो यहाँ पे मैं BR टैग यूज़ करता हूँ ताकि न्यू लाइन में चले जाएँ, है ना। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू यूज गाइस, वी कैन नाउ क्रिएट अ लेबल फॉर स्किल सेक्शन, है ना। skills known like that, ठीक है, fine, okay. So inside a skill section, first like see, अगर मान जो कि इसी तरीके से डिप बना लेते हैं लाइक दैट, इससे पहले बनाया था। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डिप, इनसाइड अ डिप वी कैन इंसर्ट दीज ऑल द थिंग्स। जैसे मान जो कि इन द इनिशियल पेज आई नीड टू क्रिएट इनपुट एंड चेक बॉक्स मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा चेक बॉक्स, प्रेस करूँगा इंटर बटन, एंड सबसे पहले मुझे स्किल्स, नेम में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्किल्स, ठीक है। एंड वैल्यू में मुझे लिखना पड़ेगा, आई नीड टू रिमूव दिस, और यहाँ पे वैल्यू लिखना पड़ेगा। वैल्यू में फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू राइट C, ओके, यहाँ पर मुझे C लिखना पड़ेगा। देन मान जाओ कि बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें लिख ली, पर यहाँ पे मान जाओ कि C++ डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे C++। देन फॉर एग्जांपल पाइथन लिखना है मुझे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पाइथन, ठीक है। देन पाइथन, देन फॉर एग्जांपल जावा लैंग्वेज, आई नीड टू एंटर,
HTML, मैं HTML लिख लेता हूँ, CSS, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे जैसे जाऊँगा, क्यों नहीं आ रहा, और सॉरी यहाँ पे ठीक है। तो जैसे मान जाओ कि स्किल्स नोन में मान जाओ कि सी को सेलेक्ट कर सकता हूँ, C++, पाइथन, अगर किसी को HTML CSS आता है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन सेलेक्ट जावास्क्रिप्ट। किसी को मान जाओ कि बस पाइथन लैंग्वेज आता है, सो दे कैन सेलेक्ट पाइथन, इफ दे नो HTML एंड CSS, तो ऐसे सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइक स्किल्स सेक्शंस, एंड आफ्टर दिस स्किल सेक्शन we have a like this section, comment section। ठीक है, तो कमेंट के लिए लाइक इफ फॉर एग्जांपल इफ यू वांटेड टू एनी पर्टिकुलर मैसेज वांटेड टू सबमिट एनी पर्टिकुलर कमेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर लाइक दैट पर्टिकुलर फॉर्म, और कुछ भी मान जो कि उससे बोलना है ना, सो उसके लिए लास्ट में हम लोग एक कमेंट सेक्शन बना लेते हैं। सो वी कैन राइट हियर लेवल, एंड लेवल के अंदर हम लोग कमेंट लिखेंगे, है ना। तो कमेंट लिखने के लिए वी कैन राइट हियर कमेंट लाइक दैट, कमेंट्स आइदर, हाँ ठीक है। अब कमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, कमेंट जैसे मान जो कि कभी भी जो कमेंट वाला ऑप्शन होगा ना, दैट विल बी लिटिल बिट लॉन्गर, मतलब मान जाओ कि कमेंट लंबा होगा, लंबा कमेंट, कभी भी जो कमेंट का ऑप्शन होता है इट लिटिल बिट लॉन्ग, उसके लिए एक होता है लाइक वन टैग, दैट टैग नेम इज टेक्स्ट एरिया। ओके, सो मुझे टेक्स्ट एरिया यूज करना पड़ेगा, है ना। आई एम गोइंग टू यूज टेक्स्ट एरिया, एंड टेक्स्ट एरिया में बेसिकली उसके अंदर क्या हमें लिखना है, राइट। सो टेक्स्ट एरिया के अंदर हम लोग एक्चुअली प्लेस होल्डर लिखते हैं, और प्लेस होल्डर के अंदर हम लोग पहले ही से ही कुछ लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया बना दिया, इसको सेव किया, यहाँ पे गया, तो टेक्स्ट एरिया तो एक कमेंट का सेक्शन बन गया, बट क्या इसमें लिखना है इस कमेंट में, आई नीड टू शोकेस दैट पर्टिकुलर मैसेज टू द यूजर एज वेल। ओके, तो मैं यहाँ पे मान जो कि लिखता हूँ कि इंटर योर कमेंट लाइक दैट। ठीक है, सो टेक्स्ट एरिया के अंदर मैं आ गया, यहाँ पे एक्चुअली मुझे लिखना पड़ेगा प्लेस होल्डर। ओके, सो प्लेस होल्डर, एंड प्लेस होल्डर के अंदर लिखूंगा इंटर योर कमेंट। ठीक, जैसे मैं इसे सेव किया, सो यू आर एबल टू सी इंटर योर कमेंट वाले सेक्शन के अंदर इंटर योर कमेंट करके ऑप्शन आ गया। So, इसमें हमें क्या कर सकते हैं, पूरा जो भी मतलब यूजर कमेंट लिखना चाहता है, दे कैन राइट एनी पर्टिकुलर कमेंट, एंड आफ्टर डैट अगर अब देखो हमने प्रॉपर फॉर्म तैयार हो गया, है ना, ऑलमोस्ट हमने सब कुछ तैयार कर लिया, लेकिन लास्ट में होता क्या है कि जब कभी भी फॉर्म कोई भी बना लेता है, फॉर्म भर लेता है, तो लास्ट में यहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन होता है ना। सो हमें सबमिट वाला ऑप्शन भी बनाना है। सो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन क्रिएट सबमिट ऑप्शन। ओके, मैं बी आर टैग बना लेता हूँ ताकि ठीक है। ठीक, फाइन। आफ्टर बी आर टैग गाइस देयर इज बटन टैग, है ना। सो वी कैन यूज बटन टैग, एंड सॉरी यहाँ पे जिस मान जो कि बटन में लिख रहा हूँ, बटन प्रॉब्लम सबमिट। ठीक है, टाइप सबमिट। ओके, सो मैं यहाँ पे सबमिट का बटन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबमिट। सो
सबमिट, यहाँ पे सबमिट बटन आ गया। ठीक है, जैसे मैं सबमिट बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये कह रहा है कि पूरा फॉर्म पहले फिल करो, तो मैं फॉर्म फिल कर लेता हूँ। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर के लिए मोबाइल नंबर इंसर्ट कर लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ यू कैन पुट द एनी पर्टिकुलर डेट, देन मेल, डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल CSC, सेमेस्टर फॉर एग्जांपल 4, languages, any particular user know the different language and comment प्रेस सबमिट बटन। जैसे सबमिट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो ये URL में आया ना, तो URL को एक बार कॉपी करो, है ना, और URL को कॉपी करने के बाद यहाँ पे लास्ट में आओ। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि सब कुछ जो भी डाटा हमने सबमिट किया है यहाँ पे डाटा को आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल नेम में मैंने सबमिट करा था अभिषेक चौहान, एनरोलमेंट नंबर वी आर सबमिटेड ओवर योर दिस, देन ईमेल आईडी ये था, मोबाइल नंबर ये था, डेट ऑफ बर्थ ये था। इस तरीके से हम लोग कोई भी चीज़ सबमिट करते हैं तो URL से वहाँ से कैच करके उठा सकते हैं, बिकॉज बैकएंड अभी Sir, हमने can you repeat this? Can you repeat this? रिपीट दिस टिल सबमिट बटन और आफ्टर सबमिट बटन। Sir, the last thing you told, like we can see the field data. Okay, so basically guys what I am saying, okay, ठीक है, समझो कि ये पूरा फॉर्म है तो फॉर्म को ऐसे सबमिट होगा नहीं, इट्स मैंडेटरी राइट। अच्छा, वन मोर थिंग गाइस, वन थिंग विच वी आर मिसिंग, जैसे मान लो कि कभी भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं ना तो वहाँ पे स्टार मार्क का सिंबल होता है कि हमें ये फॉर्म करना ही करना है, मतलब ये लाइक इट इज़ मैंडेटरी टू फिल दैट पर्टिकुलर डिटेल्स राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, आफ्टर फुल नेम यहाँ पे मैं स्टार अगर लगाता हूँ ऐसे, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ फुल नेम के बाद स्टार आ रहा है, एनरोलमेंट नंबर के बाद भी स्टार लगा सकते हैं बिकॉज मैंडेटरी, ईमेल तो मैंडेटरी होता है। ओके, मोबाइल नंबर इज ऑल्सो मैंडेटरी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी, जेंडर इज ऑल्सो मैंडेटरी, डिपार्टमेंट हाँ ठीक है इसको मैंडेटरी कर देते हैं। सेमेस्टर, जैसे मान लो कि सेमेस्टर मैंडेटरी नहीं करना है सो विल लीव इट, ठीक है। सो ऐसे मान लो कि जो जो चीज़ें मैंडेटरी है वहाँ पे स्टार हमने लगा दिया। देन व्हेन यू आर फिलिंग दिस ऑल द डिटेल्स, है ना, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे सब कुछ फिल कर रहा हूँ, फिल करने के बाद फाइनल सेलेक्ट दिस मैंने प्रेसिंग नील, देन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेते हैं, देन सेलेक्ट द लैंग्वेजेस विच यू नो। ओके, एंड मान लो कि यहाँ पे कमेंट में मान लो कि गुड वर्क लाइक दैट कुछ भी लिखना है। एंड व्हेन आई एम प्रेसिंग हियर सबमिट बटन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन आई एम प्रेसिंग हियर सबमिट बटन तो URL पे देखो यहाँ पे ध्यान से, अभी यहाँ पे लोकल होस्ट का जो आता है 127.0.0.1 एंड पोर्ट नंबर विच इज़ 5500, ओके, एंड lecture3.html, एंड व्हेन आई एम प्रेसिंग हियर सबमिट बटन तो यहाँ पे जो भी हमने डाटा यहाँ पे फिल करा था दैट विल यू आर एबल टू सी इनसाइड द URL। तो उस URL को कॉपी करो, है ना, कॉपी करने के बाद just copy that particular URL, okay, and paste it here, and जो भी डिटेल्स आपको फिल्टर करना है यू कैन फिल्टर दैट पर्टिकुलर डिटेल्स, है ना, क्योंकि अभी हमारे पास बैकएंड है नहीं इस चीज़ का हमारे पास बैकएंड है नहीं, जस्ट वी आर क्रिएटिंग अ फ्रंट एंड पार्ट HTML विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS राइट। तो हमारे पास बैकएंड है नहीं, तो कोई भी स्टूडेंट कोई डाटा फिल करेगा तो वो लोकल होस्ट की मदद से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ URL लिंक, है ना, लोकल होस्ट का जो URL लिंक होता है, विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर लिंक वी कैन एक्सेस, वी कैन सी द ईच एंड एवरी डिटेल्स जो कि किसी ने भरा है ना। तो यहाँ पे देखो एंड लगा के कंबाइन करके देता है ना, तो यहाँ पे लाइक वी कैन सी ईच एंड एवरी डिटेल्स, है ना, ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा। स्किल सेक्शन भी HTML सेलेक्ट था तो HTML यू आर एबल टू सी, जावा सेलेक्ट था, पाइथन सेलेक्ट था, सेमेस्टर 2 था, देन डिपार्टमेंट नेम CSE AI and DS, gender is equal to male, date of birth, this is the date of birth. So each and every details you are able to see inside of this URL. Okay, so I hope guys you are able to understand. This is the actual way to create Google form. So this type we can create any particular form and we can embed in our web page, है ना। अच्छा, वन मोर थिंग, हमने फॉर्म तो बना लिया, फॉर्म इतना अच्छा दिख नहीं रहा,
है ना। बट इस फॉर्म को हम लोग बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। वी कैन यूज सी एस एस, वी कैन क्रिएट फॉर एग्जाम्पल वी ऑलरेडी एडेड सम ऑफ द सेलेक्टर्स लाइक डिप टैग, और ये सब हमने लिखा है डिप टैग और स्पैम टैग, और ये फॉर एग्जांपल बटन के लिए एक अलग सेट बना लेंगे, है ना। तो ये हमने जो भी यूज करा है इसके लिए अलग अलग सेलेक्ट जैसे क्लास सेलेक्टर या फिर आईडी सेलेक्टर हम बनाएंगे, उसको सेलेक्ट करके विल डू सम ऑफ द डिज़ाइन एंड विल चेंज द कलर एज वेल, है ना। तो ये सारी चीज़ें करेंगे इन अपकमिंग लेक्चर्स, है ना। Till that guys, I hope like you are able to understand this Google form. If you have any particular doubt in this entire code base, एक बार ऊपर से लेके नीचे तक रिव्यू कर लो, कोड में कुछ भी दिक्कत है, you can ask questions. Sir, can you go back to the output page? Output page, yeah. Sir, I'm having doubt like in the department, we Mm-hmm. can actually select the option that is select department. Yeah, yeah. I mean, this option we can actually select and submit. Like, how can we solve this? Okay. I mean, we can actually submit select department as option. Okay. Oh, got it. So, isn't it the limitation, like? हाँ हाँ हाँ, समझ गया. So on that particular time, Sir, if like the first option is directly the branch like CSE, then there's no placeholder like select department. can you repeat again? Hello. Yes, sir. Yeah, yeah. Sir, I said like if even if we actually place Mm-hmm. CSE instead of select semester as first option, Okay. then we actually leave that placeholder select department. Yeah. I, So I mean, what's the solution for this? प्लेस होल्डर के लिए Like in real websites, there are options like select department, and we can actually select a single option, not that select department option. ओके जस्ट गिव मी अ मिनट. वन जॉब ये कर रहे हैं हम लोग, है ना. सेलेक्ट डिपार्टमेंट ऑप्शन एंड विदाउट सेलेक्ट डिपार्टमेंट अगर मान जाओ कि कुछ भी नहीं सेलेक्ट करते हैं, सो सेमेस्टर में भी मान जाओ कि मैं नहीं सेलेक्ट करता हूँ एंड some of the comment and try to submit it. Yeah, submit it. Yes, this was the thing I was talking. So for this, like, what we can do, let's see. Mm, for example, we can do this. So basically, like here, like it's what we can do. There is one thing. Uh, for example, in like when I talking about this option, okay. So there is disabled. There is one which we can use. For example, let's see. Let's try to understand. Let's try to use it, and let's see if it work or not. Um,
if I'm using select disabled, yeah, so now it's fine. So on that particular, okay, on that particular, what you can do, just you can use this selected disabled, okay, and here as well in this section, okay. So it will actually disable that particular option. So you're like when you're not choosing any other option, so it will disabled. So on that particular time, what you can do, okay, you need to select any other option apart from this option, okay. And if it is selected like that, and if you try to submit any particular with the help of email addresses or mobile number, and click on mail, okay, just not select any particular option here, and just select these. Still it's submitted. Okay, let's try uh, with the help of this, it is showcased like, but still it is submitted, Anna. So this is only option I'm able to see till it, okay. Just you need to select here, select disable, and that will actually disable that particular option, Anna. And it is mandatory, it will give the mandatory option to select these option apart from this select option, select disable option. So might be like when we are implementing the same thing with like actual front end with backend, on that particular time it will give the option, it is mandatory to select. But here like we Sir, can, maybe you haven't used required in that. That's why. okay, okay, let's select it again. Oh, no, still it's submitted. I'm using required, so again it's submitted. So जस्ट गिव मी वन मिनट भाई, थोड़ा साउंड रहा है, लेक्चर चल रहा है, okay. Okay, so like if I'm using here required guys, so again it is I don't know why it's submitted, I know, but yeah, it's fine. Like you can disable with the help of only selected disable option, I know. We can't like use required here, like if I'm using required here, so it is mandatory to select that particular option, right? So only we can use required option uh, in select, right? Okay, fine. Okay, if any particular other solution is there, so I will let you know what we can do for this. Any other doubt anyone have in this? Anyone?
आलोक, अरविंद, दीपक, धीरज, सैनी, मनी, मानवी, साहिल। मुझे लग रहा है कि बस एक ही बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है। और नो सर, यू डोंट हैव एनी अदर क्वेश्चन। ओके फाइन, ठीक है। तो लाइक देखो, लाइक व्हेन आई टॉकिंग अबाउट HTML ना, तो HTML में हमें मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक सब कुछ चीज़ें हमें मिल ही जाती हैं, एंड जस्ट वी नीड टू यूज दैट particular thing to create to like build our website, right? Most of the चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, like you are able to see lot of like website is there which is uh, उसका कोड मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। जस्ट हमें उस चीज़ों को यूज करना है टू बिल्ड अवर वेबसाइट। ओके, ठीक है। एंड ठीक है, स्किल्स नॉन डेव लेवल कमेंट। अच्छा, अभी हमें क्या करना है इन अपकमिंग लेक्चर, जहाँ जहाँ पे डिप टैग आप लोग देख रहे हो, है ना, जहाँ जहाँ पे डिप टैग देख रहे हो, आइदर लेवल के लिए भी या फिर कहीं के लिए भी, और या फिर इफ़ यू वांटेड टू यूज एनी अदर टैग वो भी चलेगा, है ना। या फिर यहाँ पे जो सेलेक्ट टैग है, यहाँ पे जो है इसको भी एक, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसके लिए तो दोनों के लिए सेम ही हो जाएगा। वहाँ पे एक क्लास या फिर आईडी को पहले समझेंगे, व्हाट इज़ एक्चुअली आईडी एक्चुअली वर्क, व्हाट इज़ क्लास वर्क, हाउ क्लास वर्क, हाउ आईडी एक्चुअली वर्क, एंड हाउ वी कैन सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर इंटायर पोर्शन विद द हेल्प ऑफ आईडी। जैसे मान लो कि ये डिप टैग हमने यहाँ पे बनाया, बॉडी टैग के अंदर हमने डिप टैग बनाया है, और वॉट हमने इस वजह से बनाया ताकि इसको सेलेक्ट करना बहुत ईजी हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लास बना सकते हैं, डिप टैग के अंदर क्लास बना सकते हैं या फिर आईडी बना सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास और आईडी वी कैन सेलेक्ट एंड वी कैन चेंज द कलर, वी कैन चेंज द फॉन्ट, वी कैन चेंज द इंटायर थिंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इस कोड को पुश कर देता हूँ गिटहब पे, है ना, और वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इसे। एंड इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर चेंज, कुछ भी चेंज करना है, इफ वांटेड टू चेंज एनी पर्टिकुलर थिंग, तो चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कोड। सो जस्ट व्हाट यू नीड टू डू गाइस, यू नीड टू जस्ट क्लोन द इंटायर कोड, ओके, एंड क्लोन करने के बाद यू आर गोइंग टू चेंज दैट पर्टिकुलर, जो भी प्रैक्टिस करना है। एंड जैसे चेंज करो इसमें इसमें चीज़ों को ऐड करो, इसमें चीज़ों को रिमूव करो, एंड आफ्टर दैट चलो इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, guys, if you don't have any particular doubt, so can we continue with CSS part? Okay, sir. Sir, just one doubt. Can you go through that iframe tag? Also, iframe iframe tag. tag, previous lecture, right? Yes, sir. लेक्चर 2, हाँ बताओ। iframe tag तो हमने यूज नहीं किया। अच्छा, yesterday like embedded we are embedded one video link, right, है ना, तो मैंने उसे रिमूव कर दिया था, है ना। तो उसको अगर मान लो कि आई फ्रेम टैग के अंदर हमें एम्बेड करना है किसी भी वीडियो लिंक को, है ना, सो वी डोंट नीड टू यूज़ वीडियो टैग फॉर ओवर देयर, है ना। जैसे मान लो कि ये सेक्शन टैग है ना, एक सेक्शन टैग यहाँ पे लिखता हूँ, एंड मान लो आई वांटेड टू इंसर्ट वन वीडियो, सो एस टू टैग में लिख लेता हूँ, एस टू टैग के अंदर वीडियो में लिखता हूँ, है ना। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जस्ट वी नीड टू गो टू द यूट्यूब पे कोई भी वीडियो उठाना है ना।
For example, just I using going to use that particular video. ठीक है, ठीक है, जस्ट कॉपी इट। उसके मतलब शेयर करने के बाद जस्ट वी नीड टू क्लिक ऑन एम्बेड ऑप्शन एंड जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर। इसको सेव कर लो। जैसे सेव करोगे एंड व्हेन आई एम गोइंग टू रन दिस पर्टिकुलर वेब पेज, तो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट करके वीडियो उसमें आ जाना चाहिए। ऐसे आ गया, ठीक है, और हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ से हम प्ले कर सकते हैं वीडियो, है ना। और इसमें कोई डाउट था एम्बेड टैग लाइक ए आई फ्रेम टैग में? No, sir. हाँ, तो बस हमें कॉपी पेस्ट उधर से, हमें कुछ इसमें चेंजेस नहीं करना है। वी डोंट नीड टू चेंज एनी पर्टिकुलर थिंग, जस्ट हमें वहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना है और दैट विल वर्क, ठीक है। एंड लाइक व्हेन आई वांट व्हेन यू हैव अ वीडियो ऑलरेडी, है ना, तो वीडियो तुम्हारे पास ऑलरेडी ऑफलाइन, तो हमें वीडियो टैग का यूज करना पड़ेगा। वी नीड टू सेट द विथ एंड हाइट एज वेल फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो, एंड उसके वीडियो टैग के अंदर हमें उसका पाथ भी सेट करना पड़ेगा एंड वी नीड टू राइट अ टाइप एज वेल, ठीक है। इसी में कुछ नो रिपीट कर दो सर आई प्रिंट टैग। अच्छा, आई प्रिंट टैग लाइक मोस्टली लाइक हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं आई प्रिंट टैग की मदद से, है ना। आई एम just telling कि हाउ वी कैन embed any particular YouTube video link in our like वेबसाइट। तो हमें जस्ट यूट्यूब वीडियो ओपन करना है, कोई भी यूट्यूब वीडियो, है ना। वीडियो ओपन करने के बाद वी हैव लाइक जैसे वीडियो ओपन करते हैं तो ऐसे ऑप्शन दिखता है ना, ऐसा दिखता है शेयर ऑप्शन। तो जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन शेयर ऑप्शन। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एम्बेड का, है ना। सो वहाँ पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा लिंक यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे जस्ट क्लिक ऑन कॉपी बटन। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। कहाँ पे गया, सेक्शन टैग के अंदर वहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट कर दोगे दैट वीडियो इज एम्बेडेड टू योर वेबसाइट वेब पेज, ठीक है। एनी अदर डाउट गाइस? yesterday lecture or day before lecture number 1, lecture number 2, lecture number 3 सबको? हेलो या या सर, जो आपने असाइनमेंट मतलब ग्रुप में डाली है सर, उसके बारे में थोड़ा बता दो। ठीक है, मैं देखता हूँ। बेसिकली दैट असाइनमेंट क्रिएटेड बाय सम ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स और जस्ट ठीक है, देखते हैं क्या असाइनमेंट। मैंने भी देखा नहीं अभी। फ्रंट एंड डेवलपमेंट इंटर्नशिप डे 1 असाइनमेंट मॉडर्न यूआईएक्स डिजाइन फंडामेंटल। बिफोर राइटिंग कोड रिव्यू फ्रंट एंड डेवलप मस्ट अंडरस्टैंड हाउ मॉडर्न वेबसाइट डिजाइन साइकोलॉजी टाइप स्पेसिंग मैटर्स। अच्छा, ठीक है। इससे कलर क्या क्या हो सकते हैं फिर देन color psychology, then example to distribution example, practice system district, write space
अच्छा, we study this document and submit the PDF content research. Choose any 5 product website, analyze, design exercise, create a landing page, design Figma, preferred for AI learning platform, Hero section tools. अच्छा, सो बेसिकली सी लाइक अभी ये कोडिंग वाला टास्क नहीं है, दैट इज़ फर्स्ट यू नीड टू रीड द इंटायर लाइक दिस डॉग। ओके, और डॉग को रीड करने के बाद यहाँ पे यूआईएस डिज़ाइन के बारे में फंडामेंटल्स दिया गया है। जैसे मान जाओ कि कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले हमें यूआई यूएक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि मान जाओ कि कोई भी डिज़ाइन का लुक कैसा होना चाहिए, है ना। तो लुक बनाने के लिए मोस्टली लाइक देयर आर सेपरेट टीम मेंबर्स इज देयर इन अ कंपनी। और जैसे मान लो कि कोई भी कंपनी होती है तो उसमें एक या फिर दो यू आई एक्स डिज़ाइनर होते हैं, एंड देयर आर 4 to 5 इंजीनियर एक्चुअली, फ्रंट एंड इंजीनियर और बैक एंड इंजीनियर एंड मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, और बहुत सारे टीम होती है प्रॉपर। उसमें से एक रोल होता है यू आई एक्स डिज़ाइनर का। तो एक्चुअली वो यू आई डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि मान लो कि कोई भी वेबसाइट का लुक कैसा होगा। तो दे नीड टू अंडरस्टैंड लाइक एज ए यूज़र बन के देखने पड़ता है कि लाइक क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो उसके लिए है, सो जस्ट गो थ्रू द एंटायर डॉग, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, है ना। उसके बाद से ये असाइनमेंट है ना। असाइनमेंट इज़ नॉट टू मच लाइक बिग थिंग। स्टडी दिस डॉक्यूमेंट एंड सबमिट द पीडीएफ आपको बस एक पीडीएफ बना लेना, है ना। जैसे गूगल डॉक बना लेना, गूगल डॉक से उस पर लिखते रहना जो भी चीज़ें हैं। तो जैसे मान लो कि चूज़, सबसे पहले क्या है, पार्ट ए रिसर्च, चूज़ एनी 5 मॉडर्न वेबसाइट एंड एनालाइज। जैसे मान लो कि इसमें से कोई भी एक वेबसाइट फाइंड कर लो, है ना। और और उसमें से ट्राई टू एनालाइज कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो सर्च करता हूँ मैं विजुअल हायरार्की, सॉरी, और जो भी ये मॉडर्न वेबसाइट है, जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर, लेसन, वर्सल, एआई प्रोडक्ट, है ना, जो भी चीज़ें हैं उसको ओपन करो और उसमें एनालाइज करो। जैसे कलर का पैटर्न कैसा है, टाइपोग्राफी कैसा है, उसका लेआउट कैसा दिख रहा है ना, विजुअल हायरार्की कैसा है, उसके टारगेट ऑडियंस कैसे हैं। तो वो सबसे पहले सोचना है, समझना है, ट्राई टू डू सम ऑफ द रिसर्च फॉर दिट। ओके, उसके बाद डिज़ाइन का एक्सपीरियंस है, क्रिएट अ लैंडिंग पेज डिज़ाइन फिग्मा प्रीफर्ड फॉर्म, एआई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, हीरो सेक्शन होना चाहिए, फीचर सेक्शन होना चाहिए, टेस्टिमोनियल होना चाहिए, प्राइसिंग होना चाहिए, उसका फुटर सेक्शन होना चाहिए। तो जैसे फिग्मा डिज़ाइन करना है विद द हेल्प ऑफ दीज वेबसाइट। वैसे फिग्मा डिज़ाइन के लिए बहुत सारी वेबसाइटें मिल जाती हैं, यू कैन सर्च ऑन गूगल एज वेल, है ना। तो उन वेबसाइटों का यूज़ करके आपको थोड़ा सा फिग्मा डिज़ाइन करना है फॉर व्हाट, एआई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे ई कॉमर्स टाइप में कोई वेबसाइट बनानी है एआई लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए, तो उसमें होना चाहिए। उसमें कुछ रूल्स भी दिए गए हैं। रूल्स क्या क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 कलर्स आपको लेने हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 2 फॉन्ट फैमिली यूज़ करना है। जैसे फॉन्ट, जैसे टेक्स्ट का जो फॉर्मेट होता है ना, सो देयर आर डिफरेंट टेक्स्ट फॉन्ट इज़ देयर, टेक्स्ट फॉन्ट। तो उसमें से 2 ही फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम, आइदर 1 आइदर 2, उससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं, 60-60-30-10 या फिर 80-10-10 रूल, है ना। मोबाइल फ्रेंडली लेआउट, यानी जो भी आप लेआउट बना रहे हो मोबाइल फ्रेंडली भी होना चाहिए, है ना। एंड मॉडल सास स्टाइल, सो जो मॉडर्न अभी स्टाइल जो भी एप्लीकेशन चल रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन वैसा होना चाहिए। एंड क्या क्या सबमिट करना है आपको, पीडीएफ एनालिसिस रिपोर्ट सबमिट करना है। उसके बाद आपको फिग्मा डिज़ाइन लिंक सबमिट करना है, कलर प्लेटी यूज सबमिट करना है, टाइपोग्राफी यूज, वेबसाइट रेफरेंसेस, यानी क्या क्या वेबसाइट आपने यूज किया पूरा काम करने के लिए और पढ़ने के लिए, दैट आर द थिंग्स यू नीड टू सबमिट। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ मॉडर्न यूआई, ए प्रोफेशनल वेबसाइट इज नॉट क्रिएटेड बाय एडिंग मोर एलिमेंट्स, इट इज़ क्रिएटेड बाय द रिमूविंग अननेसेसरी एलिमेंट। या इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी अभी हम लोग काम भी करते हैं, तो फॉर एग्जांपल इंटायर कोड बेस में बहुत ज़्यादा कोड होता है ना, और कोड में पूरे 100 लाइन का कोड है फॉर एग्जांपल, और 100 लाइन के कोड में देयर आर 20 लाइन और 30 लाइन इज देयर लाइक हु इज़ नॉट यूजफुल। तो हमें कंपनी ये भी कभी कभी टास्क देती है, लाइक अभी मैं लास्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, सो कंपनी ने बोला था कि इसका स्पीड इम्प्रूव करना है ना। तो जितना मतलब अनयूज कोड है उस कोड को यूज रिमूव करना है, और जो भी प्रीवियसली यूज कोड है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव वर्जन करना है उस कोड को, एंड इम्प्रूव करना है, एंड दैट with the help of that particular thing we are able to increase the running time of that particular website, है ना। तो ये काम दिया था तो उस पर हमने काम किया था, तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग फॉर यू।
Then study modern product, observe pattern and focus simplicity, consistency, spacing and clarity. These four principle are foundation of वर्ल्ड क्लास फ्रंट एंड डिजाइन. ठीक है, तो ये डेवलपमेंट का टास्क नहीं है ना. दिस इज टास्क फॉर यू आई यू एक्स ओनली. जैसे कभी भी इन फ्यूचर इफ़ यू वांटेड टू बिकम अ फ्रंट एंड इंजीनियर है ना, और मोबाइल एप्लीकेशन इंजीनियर है ना, तो आपको फ्रंट एंड का नॉलेज होना चाहिए. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली यू आई यू एक्स एक्चुअली वर्क. जैसे कभी भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे भी या फिर फ्रंट एंड इंजीनियर बनोगे भी, तो आपको किसी यू आई यू एक्स इंजीनियर के साथ में कोलेबरेट होकर काम करना पड़ेगा. सो फर्स्ट दैट पर्टिकुलर इंजीनियर एक्चुअली डिजाइन इंटायर यू आई ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, एंड उसी फिग्मा डिजाइन को आप कन्वर्ट करोगे कोड की मदद से. एंड आप यू कैन यूज लाइक मॉडर्न लाइब्रेरी लाइक रिएक्ट जे एस और नेक्स्ट जे एस और एनी अदर लाइब्रेरी टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है, सो ये आपका टास्क है ना. थोड़ा सा एक्सप्लोर करो चीज़ों को, यू आई एक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू. Sir, are you playing the role of front-end developer at your company? Basically, see, my major, when I'm working in Sapna, right? Uh, like 2 years ago, when I'm working in Sapna, that particular time I work little bit like 1 to 2, like that particular when I able to see, I'll show you that particular website, right? Sapna, take care. That is also active company. Oh, sorry. Sapna Tech है ना. इस सापना टेक वेबसाइट को बनाने के लिए लाइक अभी यहाँ पे फ्रंट एंड पेज दिख रहा होगा है ना. सो इसमें से 50% जो कंट्रीब्यूशन है फ्रंट एंड, अभी तो काफ़ी यूआई चेंज हो गया, 2 साल पहले इतना अच्छा नहीं था है ना. ऑफकोर्स देयर लॉट ऑफ इंजीनियर हु इज़ वर्किंग बिहाइंड इट है ना. तो इसका जो पैनल, पूरा पैनल बनाने के लिए पैनल मतलब स्टूडेंट एडमिन पैनल एंड दिस प्रॉपर फ्रंट एंड वेबसाइट, दैट पर्टिकुलर टाइम आई हैव यूज एक्चुअली इन फ्रंट एंड डोमेन. बट मेरा रोल वहाँ पे मोस्टली आई वर्क एज ए बैक एंड इंजीनियर ओनली. बट या अभी उस टाइम पे फ्रंट एंड इंजीनियर कोई नहीं थे, सो मैंने वहाँ पे यूज करा था. एंड आफ्टर दैट आई नेवर वर्क इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट. बट या आई हैव अ आइडिया हाउ React.js वर्क, हाउ वी कैन डिजाइन और वेब पेजेस एंड ऑल. Sir, I'm having like external doubt. I mean, या या out या of study. या यू कैन आस्क. Sir, like if your company asks you to make a website in ओके. a days, I mean, how do you proceed? Like, अरे ऐसे नहीं आता है काम. बेसिकली मैं एक्चुअली सही से बताऊँ, मोस्टली आई sir, वर्क I इन. mean, I want to know like how actually front अच्छा end सर, developers अच्छा work. जैसे मान लो कि आपको काम आया, कोई कंपनी बोल देती है आपको वेबसाइट बनानी है ना. एंड दिस इज द Yes, your company is actually service based company which is provide the software solutions to different organization है ना. यही चाहते हो है ना, जैसे TCS काम करता है. तो कोई काम आता है, प्रोडक्ट आता है, तो सबसे पहले इंजीनियर्स के पास नहीं आता वो वेबसाइट बनाने के लिए. मोस्टली उसके लिए सबसे पहले प्रॉपर टीम होती है. फॉर एग्जांपल उस टीम में हमारे यू आई यू एक्स इंजीनियर होते हैं, फ्रंट एंड इंजीनियर होते हैं, बैक एंड इंजीनियर होते हैं, टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर्स होते हैं, टेस्टिंग टीम होती है. देयर आर मल्टीपल ऑफ थिंग्स इज देयर, राइट. तो सबसे पहले वो काम आता है जिसको वेबसाइट बनवानी है, और जो भी मैनेजर है यानी CTO, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, उनका मीटिंग होता है. रिक्वायरमेंट हम लोग समझते हैं इन द इनिशियल फेज. दे एक्चुअली वांटेड टू अंडरस्टैंड what is the requirement of that particular organization, and based on the organization requirement they actually meeting with like UI UX engineer, और सबसे पहले उसका UI बनता है ना. जैसे मान लो कि फ्रंट एंड हो गया, तो एप्लीकेशन बनाना है या फिर फ्रंट एंड वेबसाइट ही बनानी है, तो सबसे पहले UI तैयार होता है. UI पूरा प्रॉपर तैयार होता है, फिर UI उसको भेजा जाता है जो भी यूजर है. तो यूजर पहले देखता है UI कि ऐसा आपका वेबसाइट बन जाएगी, तो लुक ऐसा दिखेगा, इसमें कुछ चेंजेस चाहते हो आप. अगर कहेगा कि हाँ चेंजेस चाहता हूँ, राइट, तो फिर उसमें चेंजेस भी होते हैं. UI डिज़ाइनर जो होगा, इंजीनियर जो होगा, पूरा चेंजेस करेगा. जैसे ही एक बार पूरा प्रॉपर कंफर्म हो जाएगा फ्रॉम यूजर साइड, तो वो काम दे दिया जाएगा मैनेजर को, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर. और एक्चुअली दे आर वर्किंग एज ए SD3 राउंड और SD4 जो होते हैं. जैसे गूगल में देखते हो, जैसे लिंक्डइन पे भी टैग होता है SD3 SD4 लाइक दैट है ना. तो वैसे लोगों को वो दे दिया जाता है कि लो ये अपने टीम को हैंडल कर दो, दे दो, और वो अब पूरी टीम आपकी वेबसाइट बनाएगी है ना. तो उसके अंदर में भी बहुत सारी टीम्स होती हैं, फ्रंट एंड टीम, बैक एंड टीम. तो काम को बांटा जाता है कि ठीक है ये फ्रंट एंड पार्ट है, ये 2 टीम मेंबर या फिर 3 टीम मेंबर मिलके बनाएंगे. एंड बैक एंड का जो टास्क होगा दैट इज़ डिजाइन बाई दिस डेवलपर है ना.
तो उसके लिए टाइम लगता है 3 महीना 4 महीना 6 महीना, माइट बी देयर आर सम ऑफ द प्रोजेक्ट इज ऑल्सो देयर विल टेक मोर देन 2 years और 3 years एज वेल, है ना, ऐसा भी होता है। तो ऐसे बनता है, प्रॉपर डिज़ाइन हो जाता है, मॉड्यूल डिज़ाइन हो जाते हैं, फिर उसका बैकएंड तैयार होता है, बैकएंड एक बार प्रॉपर प्रोडक्शन लेवल हो जाता है, देन विल सबमिटेड द इंटायर लाइक प्रॉपर प्रोडक्ट टू लाइक टेस्टिंग टीम, एंड टेस्टिंग टीम पूरा टेस्ट करती है अलग अलग पैमानों पे। फिर कुछ दिक्कत होता है, कुछ कोड फटता है कहीं पे, वैसे कोड बहुत फटता है, मेरा तो बहुत कोड फटा है ना। कोड फटता है तो वापस कम बैक आते हैं हमारे पास में कि Sir, या sir, like nowadays, like हाँ if we are participating in a hackathon, like ओके we need UI, then we हम्म just directly prompt it to Chat GPT, etc. Then it gives us the website, हाँ हाँ like lovable is there. And so we actually make changes what we need to make. हाँ हाँ। And so is it the modern way working? Like see, Sahil, like when I talking about Chat GPT or any particular AI tool, ये वेबसाइट बनाती हैं, आई एम 100% श्योर, लाइक वैसे ही Yes, sir. वेबसाइट Sir, बनाती, just लेकिन it बट द gives थिंग the basic like. बट द थिंग इज ही इज नॉट क्रिएटेड दैट टाइप ऑफ, जैसे मान जो कि मैं अभी शार्पनर का एग्जांपल दिया ना, Yes, sir. शार्पनर What शार्प I that is what I mean. Like हाँ we हाँ make changes हाँ actually according to our requirement. हाँ, तो वो बना के बेसिक वेबसाइट आपको दे देंगे, बट उसको उसके लिए चेंज करने के लिए प्रॉपर मतलब बनाने के लिए यू हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट द फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और प्रॉपर बैक एंड इंजीनियर का भी ज़रूरत होगा, तो बैक एंड और फ्रंट एंड का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तब उसको चेंजेस कर पाओगे या फिर उसमें कस्टमाइजेशन करके बहुत यूनिक कर पाओगे, राइट। Yes, sir. हाँ, तो वही है, तो इसको इसी वजह से फ्रंट एंड डेवलपर का एंड बैक एंड डेवलपर का अभी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, व्हेन आई टॉकिंग अबाउट रियल मार्केट राइट नाउ। ठीक है। हेलो या मानवी। सर, जो आपने ये मतलब पीडीएफ कहा है बनाने को, ये सबमिट कहाँ पे करना है? जस्ट ये जस्ट जो ओके, असाइनमेंट। वेट वेट वेट, जस्ट लाइक पहले इस पे काम कर लो, है ना, काम करने के बाद आई विल टेल यू, लाइक मुझे भी एक बार बात करना पड़ेगा कहाँ पे सबमिट कराना है असाइनमेंट को, अदरवाइज लाइक बेसिकली आई थिंक लाइक वी हैव अ टाइट्रॉन वेबसाइट, वेबसाइट पे ही सबमिट करना होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, मुझे लगता है वहीं पे करना होगा, बट आई विल कन्फर्म वन टाइम वन फ्रॉम टी, एंड आई विल लेट यू नो, ओके, इन टुमारो लेक्चर। सर, वन मोर क्वेश्चन सर, ये फिग्मा क्या होता है? Figma, like see, like when you're searching here on Google, right? Figma ऐसे, Figma is also design, जैसे मान लो कि यहाँ पे it's one of the like UI UX team, तो जैसे मान लो कि यहाँ से जनरेट करना होगा कुछ भी तुम्हें UI UX बनाना है, so with the help of this Figma you can create any particular website, you like वेबसाइट नहीं बना सकते, मतलब उसका लुक बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ Figma, है ना, एक तरह का टूल है जैसे हम लोग UI बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे डिजाइन, देयर आर लॉट Sir, ऑफ what's the डिजाइन, duration of this course? क्या Said duration. ड्यूरेशन 1 month ओनली ना, आई थिंक यू ऑलरेडी नो Yes, इट्स sir. 1 month। 5 July. हाँ, जो भी हो 1 month, जैसे आई थिंक लाइक इट्स स्टार्टेड Okay, फ्रॉम, sir. आई थिंक इट स्टार्टेड फ्रॉम 8 जुलाई, राइट, 8 जून, राइट, 8 जून से स्टार्ट हुआ Sir, है, 5th तो June. हाँ 7 जून 5th and 6th दैट विल बी June. लास्ट डेट, है ना, लेकिन हाँ लाइक विद इन 1 month ऑफ टाइम यू आर एबल टू Yes, लर्न sir. 8 June. लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। Yes, sir. प्रोजेक्ट करोगे तो सबसे ज़्यादा, अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है, दैट इज़ वन ऑफ द बेसिक थिंग्स विच इज़ गोइंग ऑन, है ना, बट जैसे ही बेसिक कंप्लीट होता है, जैसे ही प्रोजेक्ट वाला काम आएगा, है ना, अब जैसे CSS सीखने के बाद हम लोग प्रोजेक्ट पे ही आएंगे, है ना। मैं सोच रहा हूँ कल एक सेशन ले लेते हैं रिलेटेड टू गिटहब, है ना, ताकि गिटहब सबको चलाना आ जाए, बिकॉज जब भी प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग गिटहब पे ही करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कोलैबोरेशन जो भी करेंगे गिटहब की मदद से करेंगे, है ना, तो इसके बारे में एक बार देख Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ठीक है, कल गिटहब के बारे में देख लेंगे, बिकॉज गिटहब इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। कोड चलता है कि जो दिखता है वही बिकता है ना, और जिसका गिटहब प्रोफाइल सबसे स्ट्रांग होगा ना, आज के ज़माने में जिसका गिटहब प्रोफाइल सबसे स्ट्रांग है, दैट इज़ कंपनी और लाइक एनी ऑफ द लाइक मैनेजर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्चुअली सेइंग ही इज़ वेरी गुड कोडर, है ना। जैसे मुझे अभी भी, मैं से बताऊँ, अभी भी मुझे बहुत जगह से मैसेज आते हैं, मेल आते हैं कि अभिषेक, आई गो थ्रू योर गिटहब प्रोफाइल, आई सी लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू आर डन टिल इट, है ना, ऐसे करके मुझे मैसेज आता है। और यहाँ तक कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देखती हैं, जैसे फॉरेन की कंपनी जो
एक्चुअली बिटकॉइन पे काम कर रही हैं या फिर ईथर कॉइन पे काम कर रही हैं, इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क पे काम कर रही हैं, उसकी कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के सीटीओ, सीएक्सओज या फिर हायरिंग रिक्रूटर मैनेजर डायरेक्टली मुझे मैसेज करते हैं कि अभिषेक, वी हैव अ ओपनिंग in this domain, and if you want, like, you can join us as a part time engineer or full time engineer. ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि इन द इनिशियल पेज इफ़ यू आर इन कॉलेज ना, सो देर आर टू थिंग, उसको बहुत अच्छा कर लो, गिटहब को और लिंक्डइन को, है ना। और मेरा वो दोनों बहुत अच्छा है, बिकॉज मैंने उसको बहुत काम किया है। राइल, मैं सही से बताऊँ, मैंने लिंक्डइन पे व्हेन आई वाज इन कॉलेज, लाइक माई फर्स्ट ईयर, तब से मैंने काम किया है ना, और अभी बहुत अच्छा हो गया है। तो उस तरीके से थोड़ा उस पर ध्यान दो, है ना। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर लर्निंग एनी पर्टिकुलर थिंग, इफ़ यू आर क्रिएटिंग एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स, है ना, तो गिटहब पे पुश करो। गिटहब पे पुश करने के बाद शेयर करो, लोगों को दिखाओ कि मैंने इस चीज़ पे काम किया है, व्हाट आर द थिंग चेंजेस वी कैन डू, है ना। एंड जितने भी कंपनी के, अलग अलग कंपनी के रिक्रूटर मैनेजर हैं, लाइक कंपनी के फाउंडर हैं, सीटीओ हैं, सीएक्सओज हैं, उनसे कनेक्शन बनाओ अपना, है ना। दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, ठीक है गाइस, टाइम हो गया, मेरा भी डिनर का टाइम हो जाता है ना। तो खाना बन गया है मेरा भी। ठीक है, आई विल स्टॉप दिस।